If you're entering in ninth grade this year and looking for the best books you can have to get better results than 90%, then this video is for you. I'll be sharing the exact books which I used for my class 9th, and we'll be also discussing if NCERT is enough or not. Hey everyone, welcome or welcome back. I'm Ayushi and I'm a soon to be a 10th grader. So I was in ninth the previous year, so you can definitely refer to me as your senior. This is the most exact and the most practical book setup which has helped me throughout the year, and I'm really sure it will help you too. If you're confused between which books you should buy and which books you should not, then this video is definitely gonna help you a lot. Starting off strong with the Mataji of all the books, and it is the NCERT. You have to have the NCERT of each and every subject. And if you're planning to get these NCERTs from your seniors or your elder bhaiya and didi, then don't do that, because I've heard कि CBSE बहुत कुछ इस साल syllabus में add करने वाला है. And if you're willing to know what exactly I am referring to, then I will attach a link in the description. You can check out that video, and in that video they have told कि क्या क्या addition और reduction होने वाला है syllabus में इस साल के 9th क्लास में. Language subjects के लिए I had course A language and literature for all the subjects English and Sanskrit, but it varies region to region. जो तुम्हारा स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होता है जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी और एआई आता है, इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक एनसीईआरटी की बुक नहीं होती है. सीबीएसई जस्ट रिलीजेस देयर सिलेबस और उसी के हिसाब से जो भी प्राइवेट पब्लिकेशंस होती हैं वो अपना बुक पब्लिश करती हैं, और तुम्हारा जो स्कूल होगा वो उसी के हिसाब से कोई भी बुक तुम्हें देगा. So you can refer to that. But in my school, I had books from VK Publications, and we had IT as our sixth subject. And you can learn these subjects from any of the publications which is being provided to you by the school. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास IT की NCERT नहीं है, but recently I got to know कि actually ये exist नहीं करता. And yes, it's true. If you're wondering the same, then now you know. NCERTs के बाद the book you should have is NCERT Exemplar, और Exemplar की मैथ्स और साइंस की बुक्स आती है. If you want, you can get the physical version, but it is available on Google for free of cost. If you just type this term, then you will get the PDF for free. इसके solutions भी तुम्हें free of cost मिल जाएंगे at websites like Byju's and Vedantu. Exemplar के questions जो होते हैं उसमें से कुछ additional topics में से भी आते हैं, but it is most of the time asked in exams also. तो इसको practice करना is non-negotiable. तो तुम इसको practice करके ही जाना अगर if you're going to give your exam or test whatever. Moving on to the references, I will definitely not suggest कि तुम कोई भी रेफरेंस बुक खरीदो, बिकॉज रेफरेंस बुक्स में कुछ नहीं होता. इट इज़ जस्ट दिस थिक, और इसमें इतना छोटा सा टॉपिक 3 पेज में समझा रखा होता है एकदम बच्चों की तरह. सो आई डोंट थिंक इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड in the time where you have lectures free of cost on YouTube and your teacher obviously. अगर तुम्हें कोई बुक खरीदनी है, सो यू कैन गो फॉर क्वेश्चन बैंक्स, और किसी भी ब्रांड के क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हो तुम. बट पर्सनली आई हैव यूज्ड ओसल बुक्स के क्वेश्चन बैंक्स इन माई क्लास 9th. वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल बाइंग क्वेश्चन बैंक्स इज़ दैट कि वो क्वेश्चन बैंक तुम्हारे स्पेसिफिक ईयर की होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एंटरिंग इन 9th ग्रेड दिस ईयर, इट विल बी ऑफ 2026 to 2027 का बैच. तो तुम्हें उसी साल की क्वेश्चन बैंक, उसी सेशन की क्वेश्चन बैंक चाहिए रहेंगी. द लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफर अकॉर्डिंग टू द ईयर्स. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर तुम क्वेश्चन बैंक्स खरीद रहे हो, देन प्लीज़ बाय द लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक्स. Many students also use एशचांद एंड लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर वाली बुक. वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं. सो इफ़ यू वांट टू बाय दैट, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. बट पर्सनली आई डिड नॉट सॉल्व एशचांद इन क्लास 9th. एंड की एशचांद की जो बुक्स आती हैं, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव. सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, देन यू कैन यूज़ द सैपकर सेल्फ स्टडीज़. इट हैज़ उनके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस. तो तुम्हें उससे उसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे. मैथ्स के लिए आई एम क्वाइट श्योर कि तुम कंफ्यूज होगे इफ़ यू शुड चूज़ RS अग्रवाल और RD शर्मा. सबसे पहले तुम्हें NCERT ही करनी है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस. उसके बाद में तुम RD शर्मा, RS अग्रवाल पे मूव ऑन करना. तो बेसिकली इन क्लास 9th यू हैव टू फोकस ऑन योर फाउंडेशन. और RD शर्मा में जो भी सिलेबस होता है, लाइक जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इट डायरेक्टली स्टिक्स टू द NCERT का सिलेबस. वो उस पर ही बेस्ड होता है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डेंस में हार्ड, मीडियम और इजी लेवल के क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. बट इन RS अग्रवाल तुम्हें एडिशनल कंटेंट भी मिलेगा, बट इट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल, और ये तुम्हें यूज़ भी आएगा, काम भी आएगा क्लास 10th 11th 12th बाद में भी. बहुत सारे स्कूल्स में NCERT के साथ में RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा करवाते हैं. तो इन माई स्कूल आई हैड RS अग्रवाल.
और अगर तुम्हारे स्कूल में आर डी शर्मा हो रहा है देन डू आर डी शर्मा, नो नीड टू डू आर एस अग्रवाल एज वेल। और तुम दोनों बुक्स तो मत ही करना बिकॉज इतनी मोटी मोटी दोनों बुक्स आती हैं और उसको फिनिश करना इज़ लाइक वेरी टफ। यू वॉन्ट टू सेलेक्ट अ बुक देन सेलेक्ट ओनली वन, एंड इफ़ यू आस्क फॉर माई सजेशन आई वुड सजेस्ट आर एस अग्रवाल। एंड अगेन अगर तुम्हारे स्कूल में आर टी शर्मा हो रहा है देन इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों के दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। मैनी पीपल रेफर टू एम एल अग्रवाल एज वेल बट मैंने उसको यूज़ नहीं किया है अभी तक। सो आई डो नॉट वॉन्ट टू से थिंग्स विच मे नॉट बी रेलिवेंट एंड आई एम डेफिनेटली नॉट गोना बी कॉन्फिडेंट जो भी मैं इंटरनेट से देख के बोलूँ, बिकॉज आई हैव पर्सनली नॉट यूज दैट। तो एम एल अग्रवाल के लिए आई हैव नो ओपिनियंस। दिसंबर एंड इन द मोस्ट रेयरेस्ट केसेस जनवरी, यहाँ तक तुम्हें एटलीस्ट ये होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस ख़त्म है पूरा का पूरा। You have to complete your syllabus at least by January or December. To complete all your syllabus and revision by January, at least practice 3 sample papers for every subject. Like by least you can go for 3, but अगर तुम्हारा ज़्यादा करने का मन है so maximum can be any number. Sample papers के लिए भी I have used OSWAL books के sample papers. सैम्पल पेपर्स के लिए यू डू नॉट नीड टू वरी, अभी से ही सैम्पल पेपर्स जनरली सितंबर के बाद ही रिलीज़ होती हैं किसी भी ब्रांड के, तो तब का तब देख सकते हो तुम। बट फॉर नाउ टू सम इट अप, ऑल I'd से यू नीड इन क्लास 9th इज़ NCERT की बुक्स, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल, NCERT एग्जाम्पलर एंड क्वेश्चन बैंक्स फ्रॉम एनी ब्रांड। अगर तुम पूरी शिद्दत और कंसिस्टेंसी के साथ ये जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से करोगे देन यू कैन ईजिली स्कोर अबव 90% इन क्लास 9th. If you're watching this video till here, then comment blue heart emoji in the comment section so I know you're a real one. And that was it for today's video. See you in the next one and subscribe for more such content. I'll be uploading a strategy video for class 9 in the upcoming days. So subscribe to see that. See you in the next one. Bye bye.